Hello friends, now welcome back to another lecture. So today we'll discuss about section 80. So हम section 80 में देखेंगे what are the essentials of section 80, how does section 80 be a defense. तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते देखते हैं section 80 क्या बोलता है. So now ये देखिए 4 essentials we have provided here of section 80. We'll have a literal discussion later on, but now let us understand what are the ingredients of section 80. The first ingredient means that there must be an accident or misfortune. That is the act, punishable act which has been done. It must have been done due to either accident or misfortune. The second essential being the accidental act which is committed. So there should be no criminal intention or there should be no criminal knowledge to do it. So आपकी will नहीं होनी चाहिए. You should not have the desire to do that act. Neither you should have a knowledge that such and such of my act will result into this penal consequence. तीसरा essential है कि जो आप act कर रहे हो, it must be a lawful act. It must be done in a lawful manner by lawful means. And also the fourth essential being that you must take proper care and caution while doing that. So हम आगे सारे essentials को discuss करते हैं in detail. So now let's move forward and let's firstly understand that what is the rationale behind introducing necessity as a defense. Necessity, acts done in necessity is a defense because law does not intend to punish a man for the things which were not within his control. So if there were some things not within the control of a man and henceforth the act is done, in that case the law excuses the act, law condones the act. Now let us understand, यहाँ पे दो चीज़ों की बात करी गई है. One is about accident, the second being misfortune. What do we mean by accident or what do we mean by misfortune? Example ले लो. Example लेने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, accident, you know what accident means? Accident means something unexpected is happening. So something unexpected happens out of the ordinary course. So कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है which the person is not expecting और वो चीज़ हो जाती है. So something unexpected happened out of the ordinary course which no ordinary person could anticipate. तो उसी को तो एक्सीडेंट बोलते हैं ना. कुछ ऐसा हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, इतना एमिनेंट सिचुएशन था that the person cannot anticipate it. अब आप ये ध्यान देना कि जो एक्सीडेंट होता है, मिसफॉर्चून होता है ना, दोनों में एक थर्ड पार्टी होती है जिसको इंजरी कॉज होती है. सो दिस विल बी द पार्टी जिसको इंजरी कॉज हो रही है. सो दिस वन इज द विक्टिम. सो इंजरी तो दोनों में ही हो रही है, वेदर इट इज एन एक्सीडेंट और इट इज एन मिसफॉर्चून. सो वाई वी आर यूजिंग टू डिफरेंट टर्म्स and not a single term? So let's understand. Accident implies injury to only this person. Difference क्या आप देखो, this is very important.
अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स. सो एक्सीडेंट में इंजुरी बस और बस इस पर्सन को होगी एंड नॉट द पर्सन हु इज कॉजिंग इट. सो अक्यूज को कोई इंजरी नहीं हो रही है. वाइल इन मिसफॉर्च्यून देयर विल बी इंजरी टू दिस पर्सन, बट हियर इन मिसफॉर्च्यून इंजरी इस पर्सन को भी होगी. अब एक एग्जाम्पल से ले लो. सो सपोजिंगली दीज वर ए एंड बी. सो दीज आर टू पर्सन्स, दे वेंट टू अ फॉरेस्ट. अब ये फॉरेस्ट में चले जाते हैं, दे गो फॉर हंटिंग. सो ए टुक पोजिशन हियर और बी बोलता है कि मैं यहाँ पे ना बुशेस के पीछे छुप जाता हूँ. सो बी इज हियर, ए इज हियर. बट यू नो व्हाट बी डिड? बी इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग इज पोजिशन. कभी वो यहाँ पे छुप रहा है, फिर वो यहाँ पे भाग रहा है. सो नाउ ये यहाँ पे बी इज हियर. ए को नहीं पता बी इज चेंजिंग द पोजिशन एंड ए बिलीविंग ए हैड हर्ड सम रस्टलिंग वॉइस. इसको यहाँ पे पेड़ पत्तों की आवाज़ आती है. सो ए थिंक्स दैट देयर माइट बी सम एनिमल हाइडिंग हियर and A, believing that it is an animal, shoots in this direction. Up this B dies. So here the act of A is accidental. लेकिन वही एक दूसरी सिचुएशन ले लो. सपोज एक सिचुएशन में ये जो मैंने आपको भी केस बताया ना, ये हंटिंग वाला, this was the case, these were the facts of State versus Rangaswamy. I hope it is clear. So this is an example of accident. Ab now let's understand what do we mean by misfortune. So suppose ये एक कार है, ये दूसरी कार है. They both are coming in from opposite directions और ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं. सो यहाँ पे दोनों के ड्राइवर्स को इंजरी हो रही है. सो हियर दिस कोलिजन इज रिजल्टिंग इन इंजरीज टू बोथ द ड्राइवर्स. सो यहाँ पे दोनों को हो रही है. सो इट इज़ अ केस ऑफ मिसफॉर्च्यून. जबकि रंगास्वामी में देखा इंजरी वॉज ओनली डन टू बी. सो इट इज़ अ केस ऑफ एक्सीडेंट. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स रीड इट. एक्सीडेंट मीन्स सच हैपनिंग which is unintentional, unexpected, out of the ordinary course, and no man of ordinary prudence could anticipate it. Nobody can foresee. Accident implies injury to another. That is, another means only to the victim. While misfortune implies injury to other, that is the victim, as well as to the author, which means the accused. ये clear है. Now let's see the second element. So the second element is talking about that the accidental act or the act which was done in misfortune, the act should have been done without any criminal intention or without any knowledge. पहले मैं आपको ये बता दूं what do we mean by intention. Intention means the will or desire of a person to cause that act. है ना? Will का मतलब होता है you are having a desire. You are doing your act with extra certainty. You are taking some extra precautions so that the end result must and should happen. For example, I am trying to shoot at you. I'm aiming at you. मैं आप पे aim कर रही हूँ and then I'm shooting at your vital parts. मैं आपके दिल पे aim करके गोली मार रही हूँ. Understood? तो यहाँ पे I'm having an intention. तभी तो aim कर रही हूँ vital part पे and I'm shooting you there.
ताकि आप मर ही जाओ, दैट द कॉन्सिक्वेंस मस्ट अकर, आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस. सो इसे बोलते हैं इंटेंशन. नॉलेज इज a lesser degree of mens rea than intention. So knowledge means that I'm not having the intention. ध्यान से समझना, तभी समझ आएगा इनका डिफरेंस. नॉलेज में आई एम नॉट हैविंग द इंटेंशन टू डू दैट एक्ट, बट मुझे ये पता है कि मेरे इस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है. सो आपने ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, यू मस्ट हैव हर्ड दिस रूल दैट एवरी मैन नोज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट. तो मुझे पता है ना कि अगर मैं ढंग से शूट नहीं करूंगी, इफ आई एम पॉइंटिंग एट यू, मैं वाइटल पार्ट पे एम नहीं कर रही हूँ, सो आई एम नॉट हैविंग इंटेंशन, बट मैं आपकी तरफ शूट कर रही हूँ और गलती से भी गोली लग जाती है आपको, आपके वाइटल पार्ट्स पे, तो इट माइट बी द सीन दैट यू माइट डाई. सो यहाँ नॉलेज, यहाँ इंटेंशन ही है. बट एक्सीडेंट का डिफेंस लेने के लिए, फॉर टेकिंग द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, you should neither have these two mens reas. That is, you should not have the intention, neither you should have the knowledge. Why? Because of the maxim actus non facit ream nisi mensit rea. So what is happening? So when you have done an act by accident or misfortune, this accident or misfortune itself negates the very presence of criminal intention or knowledge. कोई चीज़ अचानक से हो गई है ना, एक्सीडेंटली हो गई, तो ऑब्वियसली अचानक से हुई है, एक्सीडेंटली हो गई है, तो इज़ इट नॉट निगेटिंग कि अचानक से हुई है, इसका मतलब आपके पास कोई इंटेंशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं उस चीज़ को करने की. सो व्हेन द एक्ट वाज डन because of the accident or misfortune, so act was done, so actus reus was there, but there was an absence of mens rea. Mens rea आपका absent था, and mens rea is a vital element for proving any offense. ये दोनों ही vital elements होते हैं. आपने act किया तो actus reus तो था, but mens rea तो नहीं था ना. There was no criminal knowledge, there was no criminal intention. तो इसीलिए you are given the exception. I hope ये clear है. अब आओ चलो देखते हैं next element, which is the act which is done. It should be a lawful act, done in a lawful manner by lawful means. So triple L: lawful act, lawful manner and by lawful means. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें. लेट्स टेक द केस ऑफ टुंडा वर्सेस रेक्स. सो इट इज़ REX, रेक्स. ओके, इट इज़ अ इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट ऑफ 1950. सो व्हाट हैपेंड हियर, नो, ध्यान से सुनना. टू फ्रेंड्स वर देयर, दे अग्रीड फॉर रेसलिंग. So they agreed that let's have a wrestling match together. So अब ये दोनों पहुंच जाते हैं अखाड़े में. And in the process of wrestling, foul play नहीं था. They were genuinely having a very friendly match. But by accident, ये A है, ये B है. तो B का head hit हो जाता है यहाँ से and B dies. B suffered hemorrhage and he died. So यहाँ पे accidentally B की death हुई है. A did not do any foul play. So this was an act of fencing. This was done. This was an accidental act. A did not have any criminal intention or knowledge that B मर जाएगा इस खेल में. ये इंटेंट नहीं कर रहा था ना that I have to kill B. Neither was he having the knowledge कि मर सकता है इस खेल में, because they were doing wrestling. मरता नहीं है कोई इतनी जल्दी रेसलिंग में. इसको क्या पता थी इसकी सर लग जाएगी, तो कोई मरता नहीं है. Hence
एक्सीडेंटल था, और फिर यहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज भी नहीं थी, और ये एक लॉफुल एक्ट भी है। रेसलिंग करना एक लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में दे वर प्लेइंग द गेम, लॉफुल मीन्स भी है, एंड हेंस दिस ए इज नॉट लायबल, ही विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ एक्सीडेंट। अब दूसरा केस देख लेते हैं। अब जोगेश्वर वर्सेस एम्परर का केस देखो। दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी अ टाइम्स इन मैनी ऑफ द एग्जाम्स दीज केसेस हैव बीन आस्क्ड व्हिच आई हैव प्रेजेंटेड बिफोर यू, इसलिए मैंने लैंडमार्क केसेस ही इंक्लूड किया है। सो व्हाट हैपेंड इन जोगेश्वर वर्सेस एम्परर वाज, दिस वाज द अक्यूज्ड, ओके। ये एक फिस्ट ब्लो दे रहा था बी को। अब ये बी को ना, दिस ए वाज हिटिंग, सो बीज वाइफ इंटरवीन्ड। B's wife was holding a child, so she was having a 2 months old child in her lap. She came यहाँ पे, don't hit my husband. So while holding the child, she came in between, and the blow of this A landed on the child. Child was hit by accident, and the child died. So now this A is claiming the defense of accident. अब आप बताओ यहाँ पे एक को डिफेंस मिलना चाहिए या मिलना नहीं चाहिए? एग्जामिन करो सारे एसेंशियल्स। पहला एसेंशियल क्या है? एक्ट एक्सीडेंटल होना चाहिए, तो हाँ ये एक्ट एक्सीडेंटल है, फर्स्ट एसेंशियल इज कवर्ड। सेकेंड एसेंशियल है कि कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नीदर देयर शुड बी अ नॉलेज, ओके। सो ये भी ठीक है, बच्चे को मारने की ना तो कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी एक ही, नीदर देयर वाज अ नॉलेज कि बच्चा आ जाएगा उसको लग जाएगी। सो इंटेंशन भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है बच्चे को मारने की। अब इस थर्ड एलिमेंट पे आ जाओ, क्या ये जो ए कर रहा था वो एक लॉफुल एक्ट था? वेदर दिस एक्ट ऑफ ए ऑफ हिटिंग बी वाज दिस अ लॉफुल एक्ट? नो, ये लॉफुल एक्ट नहीं है, आप किसी को मार नहीं सकते। इट इज़ असॉल्ट, इट इज़ यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, इट इज़ वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। सो ये एक ऑफेंस है, हिटिंग समबडी जब वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं है तो इट इज़ ऑब्वियसली एन ऑफेंस। तो यहाँ पे ए जो काम कर रहा था, इट इज़ एन ऑफेंस, इट इज़ नॉट अ लॉफुल एक्ट, एंड हेंस दिस पर्सन ए विल नॉट गेट द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स भी देती हूँ, ओके। अब ये एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। इफ़ यू डोंट हियर इट प्रॉपरली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कन्फ्यूजिंग। सो अब देखो एक एग्जाम्पल समझो, सपोजिंगली दिस इज द पर्सन, ओके। अब इसके पॉकेट में ना यहाँ पे ये दूसरा बंदा है, ही इज पुटिंग द हैंड इन द पॉकेट ट्राइंग टू स्टील हिज वॉलेट। ये ए है, ये बी है। सो व्हाट बी इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू स्टील द वॉलेट फ्रॉम एज पॉकेट, बट यहाँ पे वॉलेट में ना यहाँ पे रखा है वो वॉलेट नहीं है, यहाँ पे ही इज हैविंग रिवॉल्वर इन हिज पॉकेट, इसके पॉकेट में रिवॉल्वर है। व्हेन बी इज ट्राइंग टू रीच आउट, गलती से पिस्टल चल जाती है एंड ए डाइज। सो व्हाट हैपेंस, ए डाइज ड्यू टू द शूटिंग। अब यहाँ पे आप सारे एसेंशियल्स एग्जामिन करो, क्या ये एक्सीडेंटल एक्ट है? ऑब्वियसली इट वाज ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो ये एक्सीडेंटल एक्ट है। क्या यहाँ बी की क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज थी? नहीं थी। ऑब्वियसली ए को मारने की ना तो इंटेंशन थी, ही वॉज नॉट वॉन्टिंग टू किल ए, नीदर उसको नॉलेज थी कि मैं उसके पॉकेट में हाथ डालूंगा वॉलेट निकालते वक्त तो मर जाएगा। सो ही इज़ नॉट हैविंग द नॉलेज आइदर। अब थर्ड एसेंशियल एग्जामिन करो ना, क्या ये लॉफुल एक्ट है? ये लॉफुल मैनर में है। अब आप बोलोगे दिस इज नॉट अ लॉफुल एक्ट बिकॉज व्हाट बी इज डूइंग इज स्टीलिंग, ट्राइंग टू स्टील। सो आप बोलोगे स्टीलिंग इज नॉट अ लॉफुल एक्ट, तो इसलिए बी को डिफेंस नहीं मिलना चाहिए एक्सीडेंट का।
है ना, यू मस्ट बी हैविंग दिस थॉट, बट स्टिल बी को डिफेंस मिलेगा यहाँ पर। वाई? आप कौन से ऑफेंस के लिए देख रहे हो? आप यहाँ पे कौन सा ऑफेंस देख रहे हो? किस ऑफेंस का चार्जेस आप चेक कर रहे हो? यू आर चेकिंग फॉर मर्डर। आप मर्डर के लिए देख रहे हो। तो क्या मर्डर के लिए इसका पॉकेट में हाथ घुसाना एक लॉफुल एक्ट, ये रेलिवेंट फैक्ट भी है? ये नहीं है। तो इसलिए ही इज गेटिंग द डिफेंस। अब इसको ध्यान से समझो। यहां पे अगर ये थेफ्ट वाले क्राइम का चार्ज लग रहा होता तो इसको डिफेंस नहीं मिलती, बट यहां पे हम मर्डर का चार्जेस चेक कर रहे हैं। सो मर्डर के लिए इसके पॉकेट में हाथ डालना और उस रिवॉल्वर का चलना, सो एट दैट टाइम ही वॉज नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग विद द पिस्टल। वो रिवॉल्वर से कुछ गलत नहीं करना चाह रहा था मर्डर करने के लिए, एंड हेंस फोर्थ उसको डिफेंस मिलेगा। ओके, सो आप ये भी समझ लो that the accused was not doing any wrong with the pistol। आपको ये बात याद रखना है कि वो कोई गलत काम कर नहीं रहा था पिस्टल से, उसको तो पता ही नहीं था ना पिस्टल है वहाँ पे। सो देयर वाज नो रॉन्ग विद द पिस्टल। जब पिस्टल से फायर हो गया उस वक्त देयर वाज नो रॉन्ग डन विद द पिस्टल, एंड henceforth he will get the defense। बट ऑब्वियसली स्टीलिंग के लिए he will be liable, है ना, अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए। नाउ लेट्स चेक द फोर्थ एसेंशियल। अब देखो फोर्थ एसेंशियल क्या है यहाँ पे। देयर मस्ट बी प्रॉपर केयर एंड कॉशन व्हाइल यू आर डूइंग द एक्ट। तो अब एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं हम सेक्शन 80 का। सेक्शन 80 इज गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट ए इज वर्किंग विद अ हैचेट। ओके, सो दिस इज अ ट्री। अब ए इसके ब्रांच पे बैठा, इसको काट रहा, लकड़ियाँ काट रहा है यहाँ पे। सो ए इज वर्किंग विद अ हैचेट। हैचेट इज सॉर्ट ऑफ एक्स ओनली लाइक दिस। अब इसका जो हेड निकल कर ना नीचे यहाँ पे खड़ा इंसान है उसे लग जाता है एंड ही डाइज। सो दिस पर्सन डाइज। सो क्या इस ए को शुड ही गेट द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट हियर? आपको चेक करना पड़ेगा। देखो ये एक्सीडेंटल एक्ट तो है ही, सेकेंड एसेंशियल इज ऑल्सो फुलफिल्ड, देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ ए। बट अब तीसरा भी एसेंशियल सही है, लॉफुल एक्ट है ना, लकड़ियाँ काट रहा है, उसका काम है, लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में कर रहा है बाय यूजिंग अ लॉफुल मीन। लेकिन प्रॉपर केयर कॉशन था या नहीं था? सो अगर फैक्ट्स में देखो, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड न्यूमरस टाइम्स इन एग्जाम्स, और यहाँ पे गलती कहाँ होती है ना ये मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे दे देगा कि देयर वाज वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन, तो इस केस में लाइबिलिटी बताएं, और देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन, इस केस में लाइबिलिटी बताएं। वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन मीन्स देयर वाज लैक ऑफ कॉशन। वांट मीन्स लैक। तो अगर ये कॉशन नहीं ले रहा था ना, ये चेक नहीं कर रहा था नीचे कोई है या नहीं, कोई है तो नहीं, किसी को लग तो नहीं सकती है, ये जो वेपन नॉट, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ हैचेट, ये सही तो है। तो अगर उसने पूरे प्रॉपर कॉशन लिए थे, देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन, मतलब पूरे प्रॉपर कॉशन लिए थे, देन ही विल नॉट बी लायबल। बट इफ देयर वाज वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन, मतलब कॉशन नहीं लिए थे, देयर वाज लैक ऑफ कॉशन, है ना, तो कॉशन नहीं लिया उसने, चेक नहीं किया उसने, सो हियर ही विल बी लायबल। अब एक और एग्जाम्पल देख लो। अगर मान लो मैं आपको बताती हूँ कि इसी पेड़ के पास यहाँ पे ये चिल्ड्रंस पार्क है, और तब ये व्यक्ति चेक नहीं करता है, ए चेक नहीं करता, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क है, ही शुड हैव टेकन प्रॉपर कॉशन, ही शुड हैव नोन दैट चिल्ड्रंस वुड बी कमिंग हियर,
बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो कहीं ये लकड़ी टूट कर लग ना जाए, एक्स का कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, सब कुछ चेक करना चाहिए था। तो अगर चिल्ड्रंस पार्क रहता और वो उसने नहीं चेक किया होता, या फिर इतनी हज़ार्डस जगह पे वो ये इतना हज़ार्डस काम कर रहा होता, तो ऑब्वियसली दिस इज शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, और तब वो वहाँ पर लायबल हो जाता। अब एक और एग्जाम्पल देख ले। अब देखो ए के पास एक गन है, सो दिस इज ए। अब इसके हाथ में एक गन है, ये बी की तरफ फॉर फन पॉइंट आउट कर रहा है, एंड ही हैज़ नॉट चेक्ड, सो ही इज़ नॉट नोइंग वेदर इट इज़ लोडेड और नॉट। ओके, सो ये इसने नहीं चेक किया कि गन लोडेड है कि नहीं। ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पोर्ट ही इज़ पॉइंटिंग दिस गन एट बी कि ये देखो मैं गोली चला दूंगा। ही इज़ जस्ट हैविंग फन, और वो ट्रिगर पुल कर देता है एंड दिस पर्सन डाइज। सो अब क्या ए का एक्सीडेंटल था? विल ए गेट द डिफेंस? तो यहाँ पे भी देखो उसने चेक ही नहीं किया कि ये लोडेड है नहीं लोडेड है। इफ एनी रीजनेबल पर्सन वुड हैव बीन देयर इन हिज प्लेस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट रीजनेबल पर्सन? एटलीस्ट ही कुड हैव चेक्ड हिज गन कि वो लोडेड है या नहीं लोडेड है। बट दिस पर्सन इज बीइंग नेग्लिजेंट हियर, सो नेग्लिजेंस will not provide you with the defense। तो आप ए ने यहाँ पे प्रॉपर कॉशन नहीं लिया है, एंड हेंस ए विल बी लायबल। आई होप ये क्लियर है। सो वी आर डन विथ सेक्शन 80 नाउ। In the next class, we'll be starting with section 81. Thank you, everyone.